Afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay. Today, actually, I was thinking of taking origin of Earth के बारे में बोलेगा आज, लेकिन उसके पहले ना we can discuss some thing regarding this syllabus. Actually, TGT का syllabus आप सब देखा होगा. Mostly ये तो बहुत easy है देखने में, लेकिन when we go inside, you can see वो तो extend करके जा रहा है. अभी origin of the earth बोलने से इसके अंदर जस्ट वी विल थिंक ओनली थियरीज है, लेकिन थियरीज के अंदर सब जो भी इम्पोर्टेंट थियरीज है वो सब पढ़ाना होगा. वो ऐसा इंटीरियर ऑफ द अर्थ बोलने से वो वी एवरीवन नो को क्रस्ट कोर मैंटल ये सब है इंटीरियर, लेकिन इसके पहले वी वांट टू नो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ sources that we adopt for understanding the interior. इसके बारे में like seismic waves, volcanicity, ये सब के बारे में पढ़ाना होगा. ऐसा सब देखने में इजी है क्योंकि we don't know from where the questions will come. Last time का क्वेश्चन भी आप लोग देखने से आप लोग को समझ में आएगा. Mostly about 40% of the questions came from these three units: geomorphology, climatology, and oceanography से है. So these are the most important portions you want to cover. अभी इस बार तो हम ऐसा है, I will give you PowerPoints. वो हम आपको सिखाएगा क्या क्या है इसमें. वो फॉलो करने से you will get most of the objective types and you can write the descriptive answers as well from taking points from that itself. वो PPT भी हम शेयर करेगा आप लोगों से. तो जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशन. दिस इज कम वी नो दैट दिस इज फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी से ये तीन पोर्शंस है मेनली, एंड अलोंग विद दैट वी हैव बायो ज्योग्राफी इट्सेल्फ. देन फ्रॉम लोकेशन दैट इज फ्रॉम इंडिया, इंडियन पोर्शन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वी हैव लोकेशन एंड द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. ये दोनों है. लोकेशन ये सब में तो क्वेश्चन पूछना के लिए वो उन लोगों के लिए बर्थ है इसके अंदर. लैटिट्यूडल एक्सटेंशन, लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंशन, which is the country having more elongated boundary with India. ऐसा कुछ बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है. तो ये दोनों भी बहुत important areas है. Then coming to the next one, that is human geography. Human geography के अंदर जैसे these are the general, but the thing is that from this they can ask any question. लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अंदर दूसरा आएगा रिसोर्स के बारे में आएगा. रिसोर्स होने से उसके अंदर एग्रीकल्चर रिसोर्स आएगा, मिनरल रिसोर्स आएगा, फिर जो भी रिसोर्स है इसके अंदर फॉरेस्ट रिसोर्स, ये सब के बारे में वी वांट टू कवर. सो दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर. ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन वी कांट से दैट दिस इज लिमिटेड टू दिस एरिया. तो इतना सा है, ऐसा नहीं बोल पाएगा. That is the main brain behind this. तो मिनरल रिसोर्स है, एग्रीकल्चर रिसोर्स है, ये दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ दिया है. उसके साथ नेक्स्ट है इंडस्ट्री. There when it comes agriculture and industry, इसके साथ they can attach economy of India also they can attach. Then comes the transportation and communication. Along with that, they can add the trade of India, trade policies of India also they can ask. And last one is planning of India. This shows what we have planned from. इसके अंदर if you look, you can see 5-year plans. We know that it starts from 1951. So just after the independence to 2017, the 12 5-year plans है. वो पढ़ने से we know that पूरा इंडिया का planning history they can ask the question from anywhere. So देखने में ये बहुत सिंपल है, लेकिन we want to go deeply, then only we can score. ऐसा नहीं है, it is not impossible, it is possible, it is way. If you try, you will come in the rank list, that for sure. But देखने पे ऐसा नहीं छोड़ना है. ये तो बहुत सिंपल है, हमको लास्ट एंड तक लास्ट टाइम पढ़ाने से भी ये होगा नहीं, ऐसा नहीं है. We want to go deeply in each and every topic. Like today I am going to discuss about the origin of Earth. So, origin.
origin of earth के बारे में we can study today. तो इसमें I will give you this PPT. If you look, you can see major hypothesis इसके ऊपर जो origin of the earth के बारे में जो important hypothesis और theories है, we will study it today. After that, I will the highlighter marks I will show you. These will come in objective type questions. So you want to go through each and every line. ये सब पढ़ने से you can cover almost all the portions in this origin of earth के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो मोस्टली 90, we can't say it is 100%, but 90% of the questions you can extract from these points, like the gaseous hypothesis of Immanuel Kant, then the nebular hypothesis by Laplace. Then these are the major theories I am saying about the planetesimal hypothesis of Chamberlain and Moulton. Then coming to next, ये सब इसके related जो theories है, that's ये Hoyles है, ये तो लिटिलटन है, ये सब इसके related है, related theories है, जो पहले से जो theory है उसको तो relate करके दूसरा बनाया है. Then the tidal hypothesis, ये सब, these are the important one that we are going to discuss about the origin of the hypothesis and theories that is relating to the origin of Earth. We know that the Earth has been originated 4.5 billion years ago. So we want to go back. तो किसी के पास उतना we don't have enough knowledge of that. हमको पता नहीं है ये 4.5 years के पहले तो humans तो नहीं है, तो कुछ तो proof हमारे पास नहीं है. तो कैसे ये अर्थ कैसे इसका तो उद्भव कैसे हुआ है, ये तो किसी के पास नहीं है. तो क्या करेगा वो लोग, सोचेगा ये तो कैसे हुआ होगा. ऐसा सोचने से क्या उसको तो कुछ आइडिया मिलेगा, हाँ ये तो ऐसा होने से ये ठीक है. ऐसा कुछ इमेजिनेशंस हमारे दिल में, हमारे माइंड में आएगा. तो वो ऐसे बहुत लोग इसका तो ट्राई किया है, बट some of the imaginations and speculations, if we look, observe, we can say that that may be the correct one. ऐसा सोच आएगा. But still, even in the advanced scientific technologies we have, we are not sure how the earth is formed. ये किसी को अभी तक पता नहीं है. But we are finally, right now we are believing the Big Bang theory, but still there are certain doubts. ये तो सही है, ये तो सच है, ऐसा ये तो अर्थ का उद्भव ऐसा हुआ है, नहीं ये तो सोलर सिस्टम का, नहीं ये तो पूरा यूनिवर्स का कैसे, ये तो कैसे बन चुका है, ये तो किसी को पता नहीं है. So whatever we are going to tell in the study of interior of origin of the earth, you have to understand that these are just hypotheses. 100% theory तो नहीं है, किसी को ये 100% prove नहीं कर पाया है. So all these are hypotheses, but some of them as it is scientifically proven up to some extent. It is scientifically proven to some extent. So we can say that we will call them as theories, but still we can't say that that is 100% true. So when you look, the major problems came अभी की earth के, when we say about the origin, there are certain things that is not able to relate नहीं कर पाएगा. क्योंकि when we say about the solar system or the origin of the earth बोलने से सब planet का हमको डिसाइड करना है. हाँ, सब planet एक ही टाइम में इसका तो origin हुआ है solar system. तो solar system बोलने से along with that we have the sun also. तो sun का एज और ये जो अर्थ का ये तो रिलेट करना है, और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो तो रिलेट करना है, वो तो नहीं हो रहा है. वही मेजर प्रॉब्लम है. तो सन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. वी नो दैट न्यूक्लियर फ्यूजन इज हैपनिंग देयर. सो वी कैन से दैट we can say that the sun is mainly composed of hydrogen and helium है. But when we look to the earth is mainly comprised of silicates and ferrous iron है. ये दोनों है हमारा
मेन कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ में देखने से, so there is no relationship with the compositions of earth and the sun, but there are and if you go for the bigger planets, yeah, Jupiter, Saturn, ये सब देखने से you can see that the major components are methane, ammonia and yes of course hydrogen. ये तीन है, तो किसी से कुछ रिलेशन नहीं है, अलग अलग देख रहे हैं, तो ये तो कैसे होगा? that is the main concern of understanding the origin of the earth and other planets. इसका combination अलग है, उसको अभी sun is entirely, the character of the sun is entirely different from the other planets, so each planet is different from other. इसका तो rotation एक कुछ planet का rotation east to west है, कुछ planet का तो west to east है, revolution भी उल्टा हो रहा है, ये तो कैसे होगा? तो इसके लिए तो कुछ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वी आर जस्ट ट्राइंग, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड 3 points. One is the composition of the sun is entirely is different from earth and other planets, and the characteristic of these planets is also different. And the third point is some planets is revolving in clockwise direction and some is in anti-clockwise direction, or from east to west or west to east, ऐसा उल्टा हो रहा है, तो ये motion also is different from planet to planet. And so these are the major concerns for AD hypothesis what we are going to discuss here. So there are two categories when we group the hypothesis of the origin of earth के बारे में जो hypothesis है, that we can divide it into two. One is monistic and the second one is dualistic. That is the origin of the entire solar system from single parent. जो sun है वो sun से, इसका तो नहीं, ये तो जो इसके बहुत कुछ आएगा, like cloud बोलेगा, nebula बोलेगा, pre-existing sun बोलेगा, तो different names है, तो ऐसा एक single parent से इसका तो जो origin हुआ है, इसे हम बोलेगा monistic hypothesis. And there is another one that is dualistic. ऐसा है, there was a sun and a nearby दूसरा एक तो star आ गया है, because of the attraction between these two celestial bodies, a sun and other stars के बीच में जो attraction graph हुआ है, उसी तरीके से ये सब planet हुआ है. So these are the major two categories that comes under the origin of earth के बारे में बोलने से, ऐसा दो है. तो देखेगा मोनिस्टिक में क्या क्या आएगा और ड्यूलिस्टिक में क्या क्या आएगा. तो first approved hypothesis that came into existence was during 1755 by Immanuel Kant. Immanuel Kant, he is a German scholar है, तो इसने 1755 में एक gaseous hypothesis को लेके आया है, origin of the earth by Immanuel Kant, that is gaseous hypothesis. Just connect this, gaseous hypothesis is propounded by Immanuel Kant, and on which year? On 1755. And what are the principles he followed? One is law of gravitation, another one is rotationary motion, that is centrifugal force and centripetal force. आप तो सुना होगा, अभी किसी चीज इसमें एक राउंड सर्कल में से इसका तो मूवमेंट आउटर एरिया में ऐसा एक टेंडेंसी है, इट वांट टू मूव आउटसाइड, ऐसे बाहर से रोटेट करते समय इसका तो एक तो होगा, एक फोर्स होगा, इट वांट टू मूव आउटसाइड, so that is centrifugal, अंदर से बाहर जाने के लिए. दूसरा है centripetal, that is towards center, a force which is moving towards center. So दो तरीके का मूवमेंट है, that is actually comes under rotationary motion. में ऐसा है, एक चीज को if we rotate that, it has a tendency to move out, बाहर जाने का. अभी एक पत्थर में एक रोप मिला के ऐसे रोटेट करने से
if we drop it, it will move away. I say rot. So it has a tendency to move away. That is called centrifugal force है. तो ये दो फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको पता है. देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल, स्पेशली द सेलेस्टियल बॉडीज को ऐसा है, दोनों को अट्रैक्ट करने का एक तो है, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट वी हैव यूज्ड हियर. सेकंड वन इज rotationary motion, that is centrifugal force and the centripetal force. So this gaseous hypothesis by the Immanuel Kant is also based on these two principles. So what he is saying that there is a primordial hard matter. इसका कुछ आइडेंटिटी नहीं है. एक तो हार्ड मैटर है इन द यूनिवर्स एंड आर स्कैटर्ड थ्रू आउट. एक तो मैटर है, वो मैटर में डस्ट पार्टिकल्स होगा, गैसेस होगा, सॉलिड पीसेस होगा, ये सब मिला के ऑलरेडी एक्सिस्टिंग एक तो मैटर है पूरे यूनिवर्स में, सॉरी पूरे यूनिवर्स में. तो क्या हो गया, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दीज मैटर्स, ये जो है ना, इसलिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मीन्स एक को एक तो ऐसा अट्रैक्ट करेगा, तो ये कोलाइड होगा दोनों के बीच में. अभी ऐसा बहुत कुछ ऑब्जेक्ट है, इसका तो आप ऐसा मोशन, एक तो ऐसा है, एक मैटर ऐसा है, दूसरा मैटर ऐसा, तो इसका तो बीच में एक तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसके बीच में होगा. तो क्या होगा, दिस विल कम एंड अट्रैक्ट. सो इसके बीच में एक तो मोशन स्टार्ट हुआ है, दैट इज अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स. तो एक दूसरा बड़ा वाला तो छोटा वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो वो आगे आकर इसमें जुड़ेगा, नहीं ये तो इसमें फ्रिक्शन होके इसमें से हीट जनरेट करेगा. सो ही सेड दैट देयर एक्सिस्ट लॉट ऑफ हार्ड मैटर्स है, वो पूरा यूनिवर्स में स्कैटर्ड था. ये बाद में क्या हुआ है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये दो सब दिस पार्टिकल जनरेट रैंडम मोशन स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन. तो अट्रैक्शन शुरू किया, तो इसके बाद में क्या हुआ, पार्टिकल स्टार्टेड कोलाइडिंग एंड द फ्रिक्शन गेट एक्सेलरेटेड. ये पार्टिकल सब ऐसे आकर कोलाइड करना शुरू किया है, तो इसके वजह से व्हाट हैपेंड, दे स्टार्ट जनरेटिंग हीट. बहुत ज्यादा हीट जनरेट करना, प्रोपेगेट करना शुरू हुआ है. द टेम्परेचर ऑफ द मैटर started rising. वो तो इसलिए तो वो उधर का उस एरिया का जो because of this collision there happens friction. We know that if we दो पत्थर मिला के friction बना से उसमें से आग आएगा. That is the first step humans generated his fire. तो ऐसा फायर ऐसे ही ह्यूमन ने बनाया है. तो ऐसा बड़ा बड़ा मास है, मैटर्स है, वो started attracting and because of this collision there happened friction हो गया है, friction से heat generate शुरू किया है. So this in turn increase the random motion as well as the rate of pollution among the particles. So he is saying that because of the generation of heat, क्या हुआ है, इसका ये attractive force तो और ज्यादा हो चुका है. तो ज्यादा force हो चुका है and it again related to the pollution, तो ज्यादा हो चुका, तो ज्यादा पोल्यूशन होने से फिर हीट ज्यादा होगा. सो देयर वाज अ साइक्लिक मोशन. तो पहले पोल्यूशन था, तो पोल्यूशन से क्या हो गया, सॉरी पहले तो अट्रैक्शन था, रैंडम मोशन था, वो आकर कोलाइड करना शुरू किया. तो कोलाइड करने से क्या हो गया, फ्रिक्शन जनरेट किया, फ्रिक्शन से अगेन टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा होने से फिर अगेन यहाँ से फिर रैंडम मोशन और बढ़ गया. ऐसा देयर वाज एनॉर्मस मोशन, वो तो बहुत ज्यादा स्पीड, वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा हो गया. इस वजह से ये फ्रिक्शन भी ज्यादा हो गया. देन इट हैज जनरेटेड द हीट, टू मच ऑफ हीट, तो जनरेट हो गया. एंड फाइनली द गैसियस मैटर और द क्लाउड, इसमें क्लाउड भी बोलेगा. पहले तो ऐसा था, इट वाज सो कोल्ड था, सॉलिड था, मोशनलेस था, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन दे स्टार्टेड, पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन से फ्रिक्शन हो गया,
and finally because of too much of heat that is generated, there formed a hot nebula. नेबुला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। वो तो कन्वर्ट होके एक कोल्ड सॉलिड मोशनलेस मैटर्स कन्वर्ट होकर बड़ा नेबुला बन चुका, एंड दिस नेबुला स्टार्टेड रोटेटिंग इन इट्स ओन एक्सिस, एंड this is main criticism for the Kahn's gaseous hypothesis, because he has not explained the rotationary motion, how the rotationary motion of the nebula start. या तो इसने कभी भी explain नहीं किया है, so that comes under the criticism. So इसमें ये बोल रहे कि ऐसा हो गया, ये called solid motionless matter जो पहले existing था, because of the collision they have started, तो friction तो हो गया, friction से heat generate किया है, and because of this continuous action they are formed a hot nebula, and this nebula, as because of it is hot, it started rotating. So with continuous rise in temperature, the rate of rotation of motion also, nebula also get expanded. तो क्या हो गया, ये रोटेशन, ये टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो रोटेशनल मोशन भी ज्यादा हो गया, तो नेबुला का क्या हुआ, नेबुला स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इन साइज, nebula started expanding. It's a cyclic process. Again there was a cyclic process, rotation ज्यादा हो गया तो nebula started expanding हो गया, बड़ा होने से फिर ये rotational motion फिर ज्यादा हो गया, फिर ये nebula बड़ा हो गया, ऐसा continuous step by step increase है. So there is two cycle. फर्स्ट साइकिल में कैसा था, फर्स्ट साइकिल में जो cold solid motionless मैटर था, वो मैटर स्टार्टेड कोलोइडिंग, अट्रैक्ट करने शुरू किया तो पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन से फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन से हीट बढ़ गया, हीट बढ़ गया तो अगेन दिस पोल्यूशन ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन, ऐसा एक रोटेशन साइकिल हो गया. तो दूसरा क्या है, इन सेकंड स्टेज ये इसको तो ये गैसियस मैटर को कन्वर्ट करके दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू हॉट नेबुला बन चुका है. तो ये नेबुला में भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, नेबुला स्टार्टेड रोटेटिंग, ये तो घूमना शुरू किया है, तो हाफ वो घूमतेगा तो इसका तो साइज बढ़ जाएगा, because of the increasing size again this the rotation, the speed has started increasing, वो तो ऐसे हो गया. तो due to the increasing rotation speed, centrifugal force, that is the force I am saying, become very strong for the nebula exceeding the centripetal force. So अभी हमारे हाथ में एक तो ऐसा लंबा वाला रोप में ऐसा रोटेट, एक पत्थर को ऐसा रोटेट मार रहे हैं, तो पत्थर अभी नहीं जा रहा है क्योंकि हमारे हाथ में इसका कंट्रोल है. तो आई एम एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन दैट, एक तो फोर्स अंदर हम पकड़ के रखा है, इफ आई वो मेरा हाथ से हम निकालने से ये तो दूर में जाएगा. तो यहाँ क्या हुआ है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो दूर जाने का जो फोर्स है वो बढ़ गया है, अंदर आने से ये तो बाहर जाने का टेंडेंसी उसको तो बढ़ गया. एंड व्हाट हैपेंड इज द मिडिल पार्ट ऑफ द नेबुला गेट सेपरेटेड, मिडिल पार्ट ऑफ द नेबुला गेट सेपरेटेड एंड बिकम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अराउंड द कोर नेबुला. ये नेबुला का सेंटर पोर्शन है, वो जो पोर्शन से मिडिल पोर्शन से जो आउटर पोर्शन एरिया ना वो तो गेट सेपरेट का होके है, तो जो बड़ा वो सेंटर का नेबुला है ना, नेबुला के अराउंड ऐसा करना, जैसे अभी सैटर्न में है बाहर ऐसा ये है ना गैसियस एक रिंग है, इसके ऐसे इस नेबुला के बाहर में भी ऐसा घूमना शुरू किया. द रेसिडुअल सेंटर मास ऑफ द नेबुला रिमेन्स द सन, ऐसा बोलता है वो नेबुला जो अंदर का पोर्शन है दैट रिमेन्स द सन, प्रेजेंट सन वो है, एंड द रिमेनिंग मैटर व्हिच वाज रोटेटिंग अराउंड दिस नेबुला हैज बीन ग्रोन एज ए planet बन चुका है. सो दैट इज द थियरी ही वाज एक्सप्लेनिंग. इफ यू लुक, दिस इज द स्टेजेस. इन द फर्स्ट स्टेज ऐसा एक तो गैसियस, ऐसा एक मोशनलेस कोल्ड, मोशनलेस है, कोल्ड है, स्टेबल,
एक सॉलिड, ऐसा एक तो गैसियस मैटर था। वो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द इंटर पोल्यूशन। अब इसमें देखने से आपको समझ में आए, ये तो पोल्यूट कर रहे हैं, ये तो इसमें से पार्टिकल्स पोल्यूट कर रहे हैं, तो पोल्यूशन तो ज्यादा हो गया। एंड व्हाट हैपेंस, तो इसमें फ्रिक्शन आ गया, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ गया है, एंड दिस मैटर बिकम ए नेबुला। ऐसे एक तो नेबुला बन गया है। तो नेबुला में क्या हो गया, बाद में बिकॉज ऑफ द रोटेशन इसका साइज बढ़ा है, और इसमें से ऐसा रिंग स्टार्टेड कमिंग आउट, ऐसा रिंग्स स्टार्टेड कमिंग आउट जैसे। तो सेंटर में एक तो सन बन गया, ये नेबुला बिकम ए सन, एंड देयर वाज रोटेटिंग gaseous matters around this, ऐसा होगा। एंड फाइनली ये जो gaseous rings है, that has been converted to ऐसा प्लैनेट बन गया है, एंड सेंटर का ये नेबुला हो गया हमारा सन। सो दैट वाज द हाइपोथेसिस that is propounded by Emmanuel। अभी सोचने से we can, yes, that can be happen, ऐसा भी हो सकता है। So these kind of explanations and imaginations have speculations, we can say, ऐसा वाला चीज को we can say it as hypothesis, because we are feeling that yes, there is some, yes, it is possible, ऐसा भी होने का chances है। And what are the criticism he want to face? तो इसका main criticism है कि can't fail to explain the source of origin of the primordial matter। हम बोला है देयर एक्सिस्ट है प्रीमोर्डियल और हिस्टोरिक मैटर है, उसका तो ओरिजिन के बारे में इसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, ये तो कहाँ से आया है, और ये तो पहले से था, तो बोलने से भी ये तो कैसे ओरिजिनेट किया है उधर, ये कुछ नहीं एक्सप्लेन किया है। तो इस ही हैज फेल्ड टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ दिस ओरिजिन ऑफ, ये तो पहले से ही स्टार्टेड सेइंग दैट देयर एक्सिस्टेड दिस थिंग, ऐसे बोल। तो ये दिस थिंग, ये तो मैटर कैसे आया है, ये तो इसको he has failed to explain that, and they explain the source of energy that caused the random motion of the particles of the, ये तो ऐसा है कोल्यूशन स्टार्ट, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका तो रैंडम मोशन हो गया, लेकिन ये तो पहले भी एक्सिस्ट था, तो उसी टाइम ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, तो ये जल्दी कहां से आया ऐसा एक तो फोर्स, ये भी he has failed to explain about this energy। Then as per mathematics, that is law of conservation of angular momentum, that is यहाँ एक प्रॉब्लम है, the speed of the nebula should be decreased when and increasing size। nebula का साइज जो बड़ा होने से, as per the mathematics law of conservation of angular momentum से, the speed of the nebula should be decreased, not increasing। यहाँ उसने उल्टा बोला है, as the size increases the speed also get increased, ऐसा बोला है। तो as per mathematics that statement is wrong। and the last one is generation of rotationary motion can be generated with intercollision। intercollision हो गया है, वो तो हम बोल दिया, मैटर्स के बीच में जो बीच में कोल्यूशन हो गया है। if ऐसा कोल्यूशन होने से there is no possibility of a rotationary motion। फ्रिक्शन हो सकता है, हीट बढ़ेगा, बट रोटेशनरी राउंड सर्कुलर मोशन तो कभी भी नहीं होगा इससे वजह से। सो दीस आर द क्रिटिसिज्म फेस्ड बाय कांट। तो देयर मे बी चांस ऑफ आस्किंग, ये तो ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं, ये तो 5 मार्क का क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, ओरिजिन ऑफ द गैसियस हाइपोथेसिस बाय इमैनुअल कांट। तो इसमें यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन लाइक दिस, गैसियस हाइपोथेसिस किसने लेके आया है, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। तो वी कैन से इमैनुअल कांट ने, ऑन विच ईयर ये भी है, एंड द प्रिंसिपल फॉलोड इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड रोटेशनरी मोशन है। These are the main questions that is possible to ask in this area। फिर इसके ऊपर ज्यादा नहीं है, फिर पूछने का चांस है हाउ द नेबुला फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉल्ड नेबुला, ये तो कैसे हुआ है, ये सब अभी पूछने का चांसेस है। नहीं तो ये पूरा ऐसा एक्सप्लेन करना है, ये तो किसी में ऐसा भी पूछ सकता है कि
major criticism for Kant's gaseous hypothesis. Immanuel Kant gaseous criticism 3 मार्क का भी पूछ सकता है. So these are the major questions that can be expected from this area. And if you look to the second important hypothesis, that is nebular hypothesis. Nebula हमको पता है, पहले से बोल दिया है नेबुला कैसे फॉर्म किया है, ये तो हम लोग बोल दिया है. लेकिन ये जो लैप्लेस ने क्या किया, ये कान का ये थियरी देखा है, बिकॉज इट हैज कम ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द सेम टाइम 1755 को हुआ है. तो इसने ये तो स्टडी किया है और इसने एक नया हाइपोथेसिस बना है इसमें से, following or modified the gaseous hypothesis of Kant, and he named it as nebular hypothesis. Nebular hypothesis, and in 1796 में ये तो propound किया है ये theory. It was theory that time. Now we will say it as nebular hypothesis. So what it says based on two major facts: existence of nebula. तो कान ने सबको पता है देयर एक्सिस्टेड है नेबुला, तो उधर है, लेकिन ये जो प्री हिस्टोरिक मैटर ये तो कैसे हुआ किसी को पता नहीं. एक्सिस्टेंस ऑफ नेबुला है, बट स्टिल Kant is also not able to explain how this nebula is there. Even if we say, if we go back to the origin of something, origin of the universe, किसी को पता नहीं है, because we were not existed that time. तो किसी को किस आइडिया नहीं है. जितना भी अच्छा थियरी लेके आएगा, क्वेश्चन पूछेगा ये तो उधर कैसे हुआ है, इसका एक्सिस्टेंस कैसे हुआ उधर, इसका शुरुआत कैसा है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, एक किसी को अभी तक एक्सप्लेन ना कर पाया है. सो फर्स्ट वन वाज एक्सिस्टेंस ऑफ नेबुला एंड सेकंड वन प्रेजेंस ऑफ रिंग्स अराउंड सैटर्न. हम बोला है अभी जैसे गैसियस मैटर कन्वर्ट करके नेबुला हुआ है, कान के इसमें नेबुला हुआ है, नेबुला के अराउंड देयर वाज रिंग्स हो चुका है. तो लाइक दैट he is showing yes that what the Kant was saying is right, because Saturn, अभी Saturn को देखने से भी you can see that gaseous ring around this Saturn. So he explained his theory based on these two facts: existence of nebula and the presence of ring around Saturn. So what is this nebula hypothesis? A huge hot gaseous nebula already existed. Like the Kant said, there existed a matter. Here he said, instead of matter, he said that there existed a huge and hot gaseous nebula in the space and was rotating in its axis. ये तो पहले बोल के रख दिया, पहले रोटेशन का प्रॉब्लम ये सब क्रिटिसिज्म में आया था, तो इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत है. ये तो बोले ऐसा था, या तो रोटेट कर रहा था, या तो पहले एक्सिस्टिंग था. ड्यू टू दिस रोटेशन द आउटर पोर्शन ऑफ द नेबुला वाज कंटिन्यूअसली कूलिंग. बिकॉज ऑफ this the size of the nebula was decreased. If you look here, he is saying that there was a nebula, and जब ये तो नेबुला रोटेट कर रहा था, इसका तो आउटर लेयर, आउटर पोर्शन, दैट इज द जैसे अर्थ का क्रस्ट है ना, वो भी ठंडा हो चुका है, अंदर जाने से टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. तो ये बोल रहे बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन वो बाहर वाला लेयर है ना वो ठंडा हो चुका है. That what happened? Because of that reduction in the size and volume, the velocity of the nebula increased. तो मैथमेटिकली वो तो सही हुआ. पहले बोला था, वो कान ने बोला था नेबुला का साइज बड़ा हो गया है एंड रोटेशन भी इंक्रीज हुआ है. यहाँ उल्टा बोल रहे, नेबुला का साइज कम हो चुका है इसलिए तो रोटेशन स्पीड आल्सो इंक्रीज्ड. ड्यू टू द इंक्रीज इन रोटेशन स्पीड क्या हुआ, इसका तो नेबुला का साइज छोटा हुआ है, तो इंक्रीज इन रोटेशन साइज, रोटेशन का स्पीड ज्यादा होगा, तो सेंट्रल फोर्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक द स्टेटमेंट ऑफ कांट. वो रिलेट करने से आपको समझ में आएगा. एक्सीडिंग द सेंट्रल पेटल फोर्स. तो क्या हुआ, इसका
इसमें ये बोला है नेबुला का साइज छोटा हुआ है, इसलिए इसका वेलोसिटी ज्यादा हुआ है, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टार्टेड इंक्रीज, बाहर जाने का वो फोर्स है ना वो ज्यादा हो। As the outer surface is cooling, this portion of the nebula was unable to rotate at the speed of inner अंदर पोर्शन में क्या था, पूरा हॉट एरिया है, तो इसका तो रोटेशन स्पीड, एंड जो बाहर का कूल ठंडा एरिया है इसका तो रोटेशन स्पीड तो कम हो चुका है। सो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस rotate change in the rotational speed of the outer crust, the outer area get detached, वो डिटैच हो गया है मेन बॉडी से, एंड बिकॉज ऑफ दैट this portion of nebula was unable to, because of that there comes outer rings bana hai because from separated, and the remaining part of the nebula started rotating around the main nebula, ऐसा हो गया है। तो वो outer portion separate हुआ है, this rings becomes the planet and the core become the sun, that's same by Kant also same बोला है। ये तो रोटेशन स्पीड कैसे हुआ है ये तो उसने एक्सप्लेन किया है, वो तो ऐसे हो गया। सो रिंग्स बिकम प्लैनेट्स एंड कोर बिकम द सन, जैसे कान बोला है ऐसे ही हो चुका है, लाइक दिस। पहले तो ऐसा था, सेल्फ ग्रेविटी, एक तो गैसियस क्लाउड था दैट इज नेबुला था, स्टार्टेड रोटेटिंग तो रोटेट अराउंड, ये तो शेप में आ गया है, देन बिकॉज ऑफ द आउटर पोर्शन का साइज, आउटर पोर्शन तो कूल हो गया है, तो इसका क्या हो गया, साइज कम हो गया है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, एंड आउटर पोर्शन गेट डिटैच, ये तो डिटैच हो गया है, एंड आउटर पोर्शन बिकम द रिंग्स, एंड दिस रिंग्स अगेन फ्रॉम द प्लैनेट। तो ऐसे एक्सप्लेन ऑलमोस्ट सेम लाइक द कान ने जो बोला है वही लाप्लेस ने भी सेम बोला है, लेकिन उसने तो वो क्रिटिसिज्म था उसको तो कम करके वो उसको तो उठा के इसने यहाँ अप्लाई किया है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही हैज ट्राइड टू ऑल द क्रिटिसिज्म दैट इज गिवन टू द gaseous hypothesis बाय कांट, वो तो कम करने का कोशिश किया है। तो ये यहाँ भी उसको तो इस लाप्लेस को भी बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। सो व्हाट आर द क्रिटिसिज्म? One, failed to explain the source of origin of the nebula, यहाँ सब फंसता है। origin बोलने से किसी को पता नहीं है तो कैसे हुआ है किसी को पता नहीं है। The sun remains the nucleus of the nebula, and तो इसने बोला है ये सन से ही बाकी प्लैनेट बन चुका है। तो first I said it should have a small bulge around its portion, अभी का वो सन है, इसका तो बाहर का वो बाहर सेंटर पोर्शन में एक तो बल्ज होनी चाहिए, बट फॉर दिस सन, हमारे अभी सन में ऐसा कुछ बल्जिंग नहीं है। तो हिस्ट्री में ऐसा हुआ है तो आज भी ऐसा बल्ज तो होनी चाहिए, ये तो नहीं है। देयर आर सम प्लैनेट्स व्हिच रिवॉल्व ऑपोजिट डायरेक्शन, अभी सैटर्न हम बोला है, सैटर्न एंड जुपिटर बोल तो उल्टा रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो कैसे होगा? अभी जैसे सन रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में इसका भी रेवोल्यूशन होनी चाहिए, लेकिन इसका ये सैटर्न का और जुपिटर का इसका डायरेक्ट ऑपोजिट साइड में है। सो दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। द गैसियस मास would have condensed in large number of fragments than in the form of planets। तो ये क्या वो इसमें से डिस्चार्ज होके जो गैसियस मास है वो तो डिफरेंट फ्रैगमेंट होकर जाना था, बट इसने बोला है ये तो प्लैनेट बन चुका है, ऐसा कभी भी नहीं होगा बोल रहे। तो दीज आर द मेजर क्रिटिसिज्म बाय नॉट बाय फॉर नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लेस, एंड इसको तो लोकियर ने मॉडिफाई किया है दिस एज मीटियोर हाइपोथेसिस। सो यू वांट टू, ये तो समझ में, ये तो लाप्लेस का नेबुलर हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके कौन सी वाला हाइपोथेसिस बनाया है? मीटियोरिक हाइपोथेसिस बाय लोकियर। तो ये नाम और ये नाम तो याद रखना है। मे बी दिस कैन आल्सो बी कम इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है। तो इसमें भी ये याद रखना है नेबुलर हाइपोथेसिस ने किसने लेके आया है? लाप्लेस ने, एंड ही हैज फॉलोड
कांत थियरी, गैसियस हाइपोथेसिस को ये फॉलो किया है, उसमें से उड़ा के ये किया है, एंड इट इज एक्चुअली सिंगल पैरेंटल है, एक ही पैरेंट है, एक ही सन से ये पूरा बना है। सो नेबुला हाइपोथेसिस एंड गैसियस हाइपोथेसिस दोनों एक ही, ऑलमोस्ट एक्सप्लेन द सेम थिंग। ये Laplace and Kanye almost explain the same things. You look. So these are the major theories that adopted this monistic or single parental hypothesis. Single parental hypothesis को follow करके gaseous hypothesis by Immanuel Kant and nebular hypothesis by Laplace. Now we can go for the dual parental one. So ये तो कैसा है? And the important hypothesis is binary theory. इसमें binary theory बोलता है by, that means two. तो binary theory है, ये तो planetesimals hypothesis of Chamberlain and Moulton during 1905. ये है one of the important hypothesis during 1990s, actually we can say. Explained about the, it is not only explained about the origin of the earth, it explained about the earth, atmosphere and ocean in earth. ये सबको ये explain करने का कोशिश किया है, and it is not 100, this also 100% not sure. And he stated that there existed proto-sun. That means ये जो सन है, ये सन के पहले इसका एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था, वो प्रोटो सन बोलेगा. So there existed a proto sun. In Kant theory, Immanuel Kant's theory, he was saying that there existed a pre-existing matter था. अभी इसके बाद वो Laplace ने बोला है there existed pre-existing nebula था. Here instead Chamberlain and Moulton ने बोला है there existed proto sun. They have directly taken the sun. Directly बोला है there existed proto sun था. इसमें क्या हुआ, ये सन का एक कैरेक्टरिस्टिक था, it has very high temperature, and because of this high temperature it ejects hot materials, and it is known as prominences. It is known as prominences. तो वो तो word याद रखना है, prominences. What is prominences? It is the hot material ejected from the sun. तो ये भी पूछने का चांसेस है, दैट इज प्रोमिनेंसेस. ये बोल दिया है. एक तो पहले प्रोटो सन था, उसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इजेक्टिंग हॉट मटेरियल फ्रॉम इट. इसी टाइम में देयर केम ए इंट्रूडिंग स्टार, और इट वाज वेरी बिग, बिगर देन द प्रोटो सन, एंड इट पासेस द प्रोटो सन. इंट्रूडिंग मीन्स इंट्रूशन किया है, अंदर घुसा है. ये जो सन का वो एरिया है, उसके अंदर अट्रैक्टिव एरिया है, उसके अंदर ये प्रोटो स्टार आया है, एंड इट हैज पास्ड नियर टू द प्रोटो सन. तो वी नो दैट इफ टू बिग ऑब्जेक्ट मूव्स, सामने से जाएगा तो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन का. हियर this several tidal distortion due to the approach of, ये तो क्या हुआ, intrusion star जो आया है, इसके वजह से already we saw that sun is ejecting hot materials है पहले से, तो इसके वजह से ये ejection of hot materials बहुत ज्यादा हो गया. This result in the disruption in the mass of the sun. तो वो hot material वो पहले eject किया था, वो बहुत ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बाय द इंट्रूडिंग सन. इसके वजह से तो इसका क्या हो गया, इजेक्टेड टू मच ऑफ हॉट मटेरियल एंड डिस्ट्रप्शंस इन द मास ऑफ सन का वो मास कम हो गया. दिस मैटर विच इज डस्ट, गैसेस एंड रॉकी फ्रैगमेंट्स. ये जो मैटर है, हॉट मटेरियल है, इसके अंदर डस्ट होगा, गैसेस होगा एंड रॉक फ्रैगमेंट्स होगा.
and this we usually commonly termed as planetesimals. ये भी chances है पूछने का. The hot dust, gaseous and rock fragments that is ejected from the proto-sun is called, that is planetesimals. ये है. तो ये तो अभी वो तो इजेक्ट हो गया. अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? What we can, that we can. So different planetesimals aggregated to a particular core. अभी एक तो ऐसा है, इसमें से बाहर आ गया है, तो इसमें एक बड़ा पीसेस भी होगा, छोटा पीसेस भी होगा. तो ये छोटा पीसेस क्या हो गया, ये बड़ा पीस में ये तो अट्रैक्ट करके यहाँ आकर जुड़ा है, छोटा पीस. तो ऐसा बड़ा कोर बन गया, बिगर पार्टिकल टू फॉर्म. ऐसा वाला ये छोटा पीसेस को अट्रैक्ट करके ये तो बड़ा बन चुका है, एंड दिस बिकम्स द प्लैनेट. एंड लेटर ऐसा प्लैनेट बन चुका है. तो एक तो साइड में सन है, और सन से जो इजेक्ट और प्रोटो सन से जो इजेक्ट किया है बिकॉज ऑफ द इंट्रूशन ऑफ अनदर स्टार, वो इजेक्टेड हॉट मटेरियल दैट इज प्लैनेटेसिमल्स, वो तो बीच में अट्रैक्ट करना शुरू किया है. अट्रैक्ट करके ये तो बड़ा हो गया, एक तो बड़ा कोर होगा, उसके अंदर अट्रैक्ट करके ये तो और बड़ा हो गया, एंड दैट हैज बिकम planets. That is what is explained by the Chamberlain and Moulton in planetesimals theory. And इसमें हम बोला है ये तो एटमॉस्फेयर के बारे में और सन ये ओशन के बारे में बोला है. ये तो कैसे है? बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज एटमॉस्फेयर एंड ओशंस वेयर फॉर्म्ड. ये तो ऐसा बोल रहा है. इसका लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन है दैट वी डोंट वांट टू गो फॉर. ये तो डोमिनेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज के बाद में वो प्लैनेट हो गया है. उसके बाद वो प्लैनेट्स के अंदर बहुत कुछ के अंदर बहुत कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुआ है. तो इसी वजह से दे आर फॉर्म्ड एटमॉस्फेयर. गैस तो बाहर आ गया है और पानी भी बाहर आ गया है. तो इसके वजह से देयर स्टार्टेड फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस, ऐसा बोल दिया है. तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है? The size of the passing star is questionable. Actually, intrusion of a passing star is very difficult. अभी एक तो बड़ा सामने वाला एक तो ये आने से क्या हो गया, ये तो बीच में अट्रैक्ट करेगा. ये तो कभी वो तो उतना बड़ा साइज होने से ही ये तो बाहर ऐसे निकल सकेगा. ये तो बाहर ये सन का अंदर का वो मटेरियल हॉट मटेरियल को ऐसे, तो दैट इज क्वेश्चनेबल. इसका साइज अभी भी कुछ एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दिया है. बड़ा है बोल दिया, लेकिन कितना बड़ा है, कैसे है, ये तो कुछ नहीं. और इसका वेलोसिटी भी, ये पासिंग स्टार का वेलोसिटी भी इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. तो धीरे आने से इसको तो अट्रैक्ट करके दोनों एक मिला, तो इतना जल्दी आकर जाना होगा, तो इसका वेलोसिटी भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया है. तो दैट वाज द मेजर क्रिटिसिज्म फॉर दिस प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस. इसमें देखना है the theory which explained the structure of the earth, the origin of its atmosphere, continents and ocean. ये that is planetesimal hypothesis है, and it was put forward by Chamberlain and Moulton in 1905. So that was the another theory. So based on this, Hoyles and Littleton also proposed another one, that is supernova hypothesis. Supernova hypothesis में almost everything is same. इसमें उसने बोला है एक तो प्रोटो सन था, एंड दूसरा एक इंट्रूडिंग हेलो हाय सर. हेलो सुन रहे हैं क्या? जी सर. ओके. हम सोचा हम ये आउट हो गया, इसमें ऐसा आया ना.
ठीक है, मेरा स्क्रीन भी विजिबल है ना? जी सर। तो ये this is not important hypothesis, this is supernova hypothesis purely based on this planetismal hypothesis से बना है, that is Hollis Littleton supernova hypothesis है। इसमें ऐसा है, there existed a sun, इसके साथ में एक तो इंट्रूसिव सन आया है। ये इंट्रूसिव सन है ना, वो तो बहुत बड़ा सन था, एंड इट इज एट द एंड ऑफ इस, एक बड़ा स्टार था, एंड इट इज एट द एंड ऑफ हिज लाइफ टाइम का एंड टाइम था। उसी टाइम में क्या हो गया, ये सन के सामने आ गया है और ये एक्सप्लोड हो गया। तो एक्सप्लोशन से ऐसा गैसियस पार्टिकल्स, वो सन से जो जो पीसेस है वो तो बाहर आ गया है, एंड दिस स्टार्टेड, वो एक्सप्लोशन से जो इंक्लूडिंग सन का वो पोर्शन है, वो स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द प्रेजेंट सन। वो जो हमारा प्रोटो सन था उसके रिवॉल्व करना शुरू किया है, एंड दिस बिकेम प्लैनेट्स। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। दूसरे में, पहले में क्या बोला था, प्लैनेटस्मल हाइपोथेसिस में क्या बोला था, वो इंट्रोड्यूसिंग सन तो आया है, स्टार तो आया है, एंड इट हैज गॉन अवे, बट बिकॉज ऑफ इट्स एंट्रेंस, ये तो क्या हुआ है, सन से जो हॉट मटेरियल है वो तो बाहर निकाल दिया, एंड वो दूसरा वो स्टार है वो तो गया। वो जो निकाल दिया उसमें से प्लैनेटिसिमल्स बना है, वो प्लैनेटिसिमल्स कन्वर्ट करके प्लैनेट्स बन गया। लेकिन यहाँ ने उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये हॉट मैटर तो का कुछ नहीं बोला है, इसने बोला है ये जो स्टार दैट हैज बीन इंट्रूडेड वो तो एक्सप्लोड हो गया है, और ये जो एक्सप्लोड हुआ है वो दैट बिकम द प्लैनेट नाउ, दैट वाज एक्सप्लेन्ड। वो तो इसका ज्यादा ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी we can't say anything, so you want to understand this supernova hypothesis was put forward by कौन है, वो बोलने से you want to answer this। And another important one is tidal hypothesis of Jeans and Jeffreys। nebular cloud gaseous hypothesis important hypothesis है, nebular hypothesis important है, planetismal hypothesis important है, then another important one is tidal hypothesis of Jeans and Jeffreys। इसने तो 1919 में ये लेके आया है, and it has been modified on 1926। The same concept, यहाँ भी if you look, there is a primitive sun। Earlier we said it is proto sun बोला था, यहाँ it is primitive sun। A much larger star, 5 times more size है इस स्टार में, that is named as intruding star। जैसे just like the प्लैनेटस्मल हाइपोथेसिस, इसमें भी सेम बोला है, because we know that this is dual parental हाइपोथेसिस है, मोनो पैरेंटल नहीं है, ड्यूअल पैरेंटल है, तो ऐसा है। तो मच लार्जर स्टार सामने आ गया है, क्लोज इनफ टू द प्रिमिटिव स्टार, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या हुआ, हॉट गैसेस दैट इज टाइडल प्रोटुबरेंसेस बोलेगा इसे, द शेप ऑफ सिगार, मींस यहाँ तो छोटा होगा, सेंटर में ज्यादा आके ऐसा, जस्ट लाइक द शेप ऑफ आवर आइज ना, तो ऑलमोस्ट ऐसे शेप में आया है, दैट इज द शेप ऑफ सिगार फ्रॉम प्रिमिटिव सन ड्यू टू द ग्रेविटेशन। ये क्या हो गया, सेम चीज हो गया, एंड हॉट गैसेस द शेप ऑफ सिगार सेपरेटेड। वो जो पहले सन था वो सन से जो पहले हॉट मटेरियल बोला था वो भी सही है, सेम है, हॉट गैस इधर बोला है, लेकिन ये गैस जो टाइड से वो बाहर आया है, that came in the shape of a cigar, ऐसा शेप में आया है, because of the pulling of intruding star, same concept। and this cigar, this shape is usually stated as filament है, थोड़ा सा टर्म में चेंज किया है। this tidal protuberance has failed to return back to the primitive sun। वो जो बाहर आया है, it has failed to go back to the pre-existing or primitive sun। तो इस
that has started rotating around the primitive star. Same concept, just like the planetesimal hypothesis. Here, instead of saying hot material, he said that tides, tidal protuberance. That is why it is termed as tidal hypothesis. The filaments, इसमें ये prove कर पाया है. He said that this filament center sector were bulgy. है तो center में bulgy है. Because of this, यहाँ अभी देखने से the bigger planets are at the center and दोनों side में छोटा छोटा planets है. That he has able to explain. अभी दो inner planet है, Mercury, Venus, Earth, ये भी Earth, ये सब छोटा है. Jupiter, Saturn ये तो बड़ा हो गया. तो नेपट्यून, ये सब जुपिटर, सैटर्न ये सब छोटा बड़ा हो गया और सामने ये नेपट्यून ये सब छोटा हो गया है. तो दैट इज हाउ ही एक्सप्लेन. बिकॉज ऑफ दिस शेप द सेंटर वाला जो है वो बड़ा प्लैनेट हो चुका है एंड जो सामने वाला है वो छोटा छोटा प्लैनेट बन चुका है. दैट इज व्हाट व्हाई ही हैज सेम हाइपोथेसिस लाइक द प्लैनेटिसिमल्स. इफ यू फॉरगेट, you just connect these together. Tidal hypothesis and planetesimal hypothesis binary theory same hai, but instead he has used different terms, primitive sun, that is protosun. Intruding star same hai, yahan bhi udhar bhi. But what the difference is? In that he said that the hot matter come outside. Instead he said that hot gases tides, that is tidal protuberance. That is the main difference. And along with that he has told that वो जो बाहर आया है वो सिगार शेप में आया है. दैट इज अ मेजर डिफरेंस. तो इसका क्या क्रिटिसिज्म है? इफ द प्लैनेट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द सन, दे शुड बी मेड अप ऑफ लाइटर एटॉमिक मटेरियल, हीलियम एंड हाइड्रोजन से. लेकिन जब हम पहले बोला था अर्थ का फॉर्मेशन है मैक्सिमम, इसमें ज्यादा है सिलिकेट एंड फेरस. सिलिका एंड फेरस है, आयरन, फेरस मींस आयरन, आयरन है अर्थ में ज्यादा. दैट इज मच हेवियर है. But instead here sun में क्या है? Helium and hydrogen है. So this is not acceptable. If it is come from the sun, the material that is made, the planet which is made by, should also be the same. But ये तो ऐसा नहीं हुआ है. In the universe, stars are so far apart that there are a few chance of intruding stars. ऐसा है. हमको पता है अभी गैलेक्सी है, बहुत कुछ स्टार्स है, but it exists millions of kilometers away. So there is very less chance of coming two stars close or closely pass होने का chances बहुत कम है. We haven't know anything yet. ऐसा कुछ पास हुआ है अभी तक पता नहीं है. So these are the two major criticisms for the tidal hypothesis. When we say hypothesis, these are the major hypotheses you want to look out and you want to understand. So you want to understand who proposed this theory, which year, and what is the major concept. तो ऐसा ऐसा point बना के पढ़ने से you can easily catch it. Okay. Actually, are you hearing me? Listening me? Hello? सर हाँ, अभी ना वो सर मैसेज किया है, दूसरा क्लास है तो हमको अभी बंद करना पड़ेगा. Is it okay? ओके सर. तो थियरी हाइपोथेसिस ये है, थियरी ना नेक्स्ट क्लास में हम बोल देगा क्या है ना. ये पीपीटी भी हम शेयर करेगा. ये उड़ा के ना ऐसे ही अभी क्लास जो दिया ना, तो ये आज ही पढ़ने से ना यू कैन अंडरस्टैंड ये पॉइंट जो है ना वो देखना है हाथ में. ओके, ये ऐसा ही देगा. तो अभी पूरा नोट देने से वो पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा. यू डोंट हैव टाइम ना. सो ये हम ऐसा देगा. ओके जी सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.